Today we will start some practical based work. For the subject of remote sensing and GIS, we have lots of software for practical like the IRDAS, QGIS, ArcGIS, ILVIS, GRAS, Saga, the lots of. But we will select QGIS. QGIS means Quantum GIS. It is an open source software. Open source means free to available to all. One by one, I will explain how to install QGIS, how to start QGIS, means how to create the shapefile, how to digitize the map, then raster data, vector data, then classifications, supervised classification, unsupervised classification, then subsetting. We have 10 practicals on QGIS. One by one we will start. Here, the objective of this class is download Quantum GIS, yani QGIS, then installing QGIS, getting familiar with QGIS interfaces, installing plugins. Plugins means what? Actually, it is an interface between our you can say that work and our system. Suppose I want to do some digitization smoothly, then some plugins are available for that digitization. If I want to create the web portal, then some plugins also available for that web portal. Then adding vector and raster data into layer of QGIS. Software is Quantum GIS, QGIS. We require 4 hours for this practical. You should know basic knowledge of computer and you should have internet connection. These are some reference for reading. Also some tutorial available on that side. Okay. Downloading QGIS. First, there is a website of QGIS. Copy that and paste here. Here you can download depending on your PC's configuration. Means 64-bit or 32 bits. If you want to run it on desktop, then you should download this 32-bit. And if you have well configuration laptop, then 64-bit. Okay. From here, and depending on OS also. If you have Mac OS, then download here. If you are Linux, then you can download QGIS from here. For tablet, mobile or tablet. Also, I provide one link previously for mobile. Okay, this one. For Windows, this one. Okay. You can download this version or this version. Okay. After clicking this, you should get this window. Then click here, download now. Actually, I already downloaded and installed QGIS. That's why I'm not able to show you this installation from starting, because lots of files already run on that QGIS. So it is not possible to me that uninstall and install that one. That's fine. Okay. After that, after installing, you should save that file. This is one exe and click this save file. The setup is already download, and how to install that QGIS. Okay, when you download this
exe, and exe will be saved in any drive or your download folder. Okay, for example, here in my PC it was saved on download folder. Okay, after that click that exe, double click that exe, then you will get that window, welcome window. Click on next. Okay, the ninth step is that the license agreement. The exe asks you if you are accept that all agreement, then click agree to continue. Click here agree to continue. Then next one, location where you want to save that QGIS. It's better to save on C drive also. If you don't want to save on C drive or by default folder, then you can browse it and save anywhere on your computer. Then click next. Any difficulty up to it? हमने क्या किया है, हमने QGIS के वेबसाइट पे जाके QGIS का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है. ओके, डाउनलोड करने के बाद उसकी exe हमारे कंप्यूटर में सेव हो गई. जो डाउनलोड फोल्डर होगा आपका बाय डिफ़ॉल्ट, या बाय डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर डाउनलोड में दिया होगा आपने, उस फोल्डर में वो सेव हो जाएगी. फिर उस एक फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है कि हमने डाउनलोडिंग कैसे करना है ये सीख लिया है. सेकेंड टास्क में हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलिंग कर रहे हैं. जो QGIS की exe डाउनलोड हुई थी उसको डबल क्लिक करके हमने उसको इंस्टॉल के लिए स्टार्ट कर दिया. तो फर्स्ट विंडो आएगी, उसमें वो पूछेगा लाइसेंस एग्रीमेंट क्या है, नेक्स्ट करना है, ओनली नेक्स्ट करना है. फिर लोकेशन चेंज सेलेक्ट करना है कि हमें कहाँ पे वो सेलेक्ट करनी है, सी ड्राइव पे करो या फिर आपको जो चाहिए तो उस ड्राइव पे करो, पर बेटर देन अदर ड्राइव यू शुड इंस्टॉल ऑन सी ड्राइव. देन उसके बाद दिस विंडो कम्स कंपोनेंट्स. एट दैट टाइम ये सफिशिएंट है, ओनली QGIS आपको सेलेक्ट करना है, बाकी की आपको अभी ज़रूरत नहीं है. फिर उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है. देन प्रोसेस बाद स्टार्ट हो जाएगा और यू शुड वेट फॉर 2 or 3 minutes. आफ्टर दैट क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश. At that stage, your QGIS software install on your computer. Okay, like this. डेस्कटॉप पे आ जाएगा. एक शॉर्टकट भी क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पे. आफ्टर क्रिएटिंग दैट शॉर्टकट, मेरे डेस्कटॉप पे मैंने नहीं लिया है, तो आपको लाइक वाइज दिस ओपन करने के बाद ये विंडो आ जाएगी. ओके, ये मेरे कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट थे जो कि अभी डिस्प्ले हुए हैं. आपको एक ब्लैंक आ जाएगा, जैसे कैसे डेस्कटॉप पे ब्लैंक अपीयर हो जाएगा. थर्ड एक्सरसाइज है हमारी GUI, QGIS का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसा होगा. तो दिस इज कॉल्ड मैप लेयर, दिस इज कॉल्ड मेनू बार, दिस इज कॉल्ड टूल बार, दिस इज कॉल्ड मैप व्यू एंड दिस इज स्टेटस बार. दिस इज, ये रहेंगे आपके मेनूज. लाइक दिस, न्यू प्रोजेक्ट करना है, ओपन प्रोजेक्ट करना है, सेव करना है, कुछ प्रिंट आउट लेयर्स रहेंगे. फिर सेकेंड मेनू में रहेगा एडिट का. एक 10 मिनट. सेकेंड मेनू में एडिट का ऑप्शन रहेगा. थर्ड मेनू में आपका जो मैप है, व्यू लेयर पैन करना है, उसको मेजर करना है, स्टैटिकल कुछ समरीज ऐड करने हैं. वन बाय वन हम ये देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. देन इन दैट लेयर you can create layers, means you can create new shape file, layers. Then you can add layers also. If you have data in CSV file,
of in raster data. Then you can add that raster data, vector data, then text file also, and some plugins. After that section, we will see what is plugin. Okay, this is menu bar. ये पेन दिख रहा है आपको, ये आपका टूल बार रहेगा. ये जो दिख रहा है, ये सेटिंग के जैसे एक ऑप्शन, ये टूल बार है. डिफरेंट टूल्स है. जीडा लाइब्रेरी है, जैसे कि हमें कन्वर्ट करना है, लेयर कन्वर्ट करना है, या फिर कुछ प्लॉट्स करने हैं उसके रिलेटेड, तो ये कुछ टूल्स अवेलेबल है. ओके, ये स्टेटस बार, ये मैप व्यू, ये मैप व्यू जिसमें हम काम करेंगे, ये मैप व्यू रहेगा. ओके, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, या इसको बड़ा कर देती हूँ. ओके, तो आपको समझ में आए. ये मैप व्यू रहेगा, जैसे कि जहाँ पे डिस्प्ले होगा आपको. ये रहेगा आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. किसका? QGIS का. ओके, I already tell you the menus of menu bar: edit, views, layer, setting, plugins. After starting the practical, we will see one by one these all menus. Okay, today I will only install and give some introduction about QGIS, and I will show you how to install plugin, and also I show you how to raster data and vector data and create the shapefile. Okay, shapefile यानी जो कुछ भी हमारे QGIS में वर्क होता है वो सब शेप फाइल में होता है. जो हम फाइल बनाते हैं, जैसे कि आप एक्सेल की फाइल बनाते हैं, पेंट की फाइल बनाते हैं, वैसे QGIS में हम जो भी फाइल बनाएंगे उसको हम शेप फाइल बोलेंगे. शेप फाइल वो एक लेयर रहता है, डिफरेंट लेयर. जैसे कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट की अगर पिक्चर निकालनी है तो उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, ये सब हम लेंगे तो सब एक एक लेयर में लेंगे. तो वो एक लेयर में जब लेंगे तो वो एक एक शेप फाइल हम क्रिएट करेंगे. ओके, आफ्टर दैट इंस्टॉलिंग. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे इंस्टॉलिंग प्लगइन. प्लगइन कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो प्रैक्टिकल में आपको दिखाती हूँ. ये प्लगइन का ऑप्शन है. ओके, मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन. ओके, एक विंडो अपीयर हो जाएगी. ये कुछ प्लगइन्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हैं. अगर आपको कुछ नए प्लगइन्स चाहिए, ओके, सपोज ये प्लगइन्स है, तो यहाँ जाके मुझे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा. अगर मुझे ग्रास की चाहिए तो मैं ग्रास की सेलेक्ट करूँगी. अगर मुझे कुछ मैजिक बैंड, अगर मुझे, एक मिनट, ये प्रोसेस हो रहा है. ये प्लगइन्स जब आप क्लिक करोगे तब उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी. ओके, अगर आप कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं कि जो आपको नहीं मिल रहे हैं, यहाँ नहीं है प्लगइन्स, आपको इंस्टॉल करने हैं, तो आप क्या करोगे? सिंपल QGIS, गूगल पे जाके QGIS प्लगइन टाइप करोगे, QGIS के पोर्टल पे जाओगे आप, लॉट्स ऑफ प्लगइन्स अवेलेबल है. If you are perfect in QGIS, then also I will teach you how to create plugins. जैसे आप खुद के इंटरफेस क्रिएट करते हो, वैसे आप खुद के प्लगइन्स भी क्रिएट कर सकते हो. ये कुछ प्लगइन्स हैं. लिस्ट आ जाएगी प्लगइन्स की. ये देखो, सिटी बिल्डर के लिए एक प्लगइन्स है. अगर मुझे वेब डिज़ाइन के लिए चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मुझे जिसके लिए चाहिए उसके लिए मैं टाइप करूँगी. वहाँ पे वो थोड़ा आपकी लॉगिन आईडी चाहिए उसके लिए. ठीक है,
आपको एक बार लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी. इफ़ यू आर रजिस्टर यूजर देन QGIS plugins is available for you. These are plugins. नेक्स्ट हम वेब के लिए देखेंगे एक, जैसे मैप हमें बैकग्राउंड में लाना है तो उसके लिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कौन सी भी प्लगइन आपको दिखाती हूँ इंस्टॉल करके. ऑटोप्लॉट की है, तो हमने अगर उसको डाउनलोड लेटेस्ट कर दिया तो उसकी ये फाइल आ जाएगी. सेव कर लिया. फिर ये जहाँ पे प्लगइन्स आ जाएंगे उसको कट कर दो और ये मैंने डॉक्यूमेंट में उसको पेस्ट कर दिया. ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, इंस्टॉल फ्रॉम जिप करना है. मैंने कहाँ सेव कर दिया था उसको, डॉक्यूमेंट में. ये प्लगइन कर दिए. अनइंस्टॉल नहीं करना है उसको, वैसे ही लेना है, जिप फाइल ही रहनी है उसमें. ठीक है, इंस्टॉल फ्रॉम जिप है ना यहाँ पे, तो ओनली यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन जिप देन इंस्टॉल प्लगइन. ओके, अभी ये कैपेबल नहीं है ये वाली प्लगइन, क्योंकि वर्जन का कुछ इशू है. ये ओल्ड प्लगइन है और मेरा वर्जन न्यू है. अगर वर्जन मैच हो जाता था तो वो प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली आ जाता था. अभी ये इंस्टॉल हो चुकी है मगर कुछ एरर क्रिएट करेगा, कुछ पाइथन के कुछ फाइल से वो नहीं आए, बट इतना वो उसका इफेक्ट नहीं करेगा. एडवांस लेवल पे आपको जब वर्क होगा तब वो मैटर करता है. अब ये इंस्टॉल प्लगइन हो गई. कहाँ हो गई है, ये देखो ऑटोप्लॉट आ गई. ये क्या बोल रहे हैं, देखो दिस प्लगइन इज कंपेरेटिव वर्जन QGIS. ये 1.0 वर्जन के साथ है. अभी मेरा 3.5 और समथिंग उसके बड़ा वर्जन है. तो ये ओल्ड प्लगइन है और मेरा वर्जन न्यू है. फिर भी यहाँ चल जाएंगी. एडवांस वर्क करना है तब मुझे वो प्रॉब्लम आ जाएगी. तो ये प्लगइन किसके लिए प्रॉब्लम किसके लिए यूज़ करते थे हम, पॉलीगॉन कैप्चर करने के लिए. सेलेक्टिंग बाय पॉलीगॉन मर्जिंग फ्रॉम वन अनदर, यानी कि एक हमने अगर एक पॉलीगॉन बना दिया है तो दूसरे पॉलीगॉन के साथ उसको ऑटोमेटिकली मर्ज करना है और एक डिफरेंट लेयर लेना है. तो उसके लिए मुझे ऑटोप्लॉट की ज़रूरी है. QGIS टू लिव ये एक प्लगइन है. जब आप क्या करते थे, आपका कुछ प्रोजेक्ट रहा तो उसको वेब पोर्टल पे लाने के लिए HTML वगैरह यूज़ करते थे, फिर आपको वेब पेज क्रिएट करना पड़ता था. Here this task will be easy. Here you using this QGIS to live plugin you can develop your own web map without HTML or without coding that HTML. Okay, तो ये हो गए प्लगइन्स के. अभी हमने ये इसमें क्या क्या सीखा है, QGIS डाउनलोड करना, QGIS इंस्टॉल करना, फिर QGIS की जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देन प्लगइन इंस्टॉल करना. अब हम एक छोटा सा पार्ट उसका, और हमने ये मेनू बार, टूल बार, व्यू पैनल, ये पैनल्स भी देखे. अभी तुम्हें मैं एक नया क्रिएट करके दिखाती हूँ. ओके, दिस इज न्यू प्रोजेक्ट. कुछ बैकग्राउंड है नहीं है. अगर मुझे इसमें कुछ मैप लाना है तो मैं क्या करूँगी, ये देखो OSM स्टैंडर्ड, ये भी एक प्लगइन से ही आता है. एक मैप आ गया, कहाँ इंडिया करेंगे, आ गया ग्राफिकल यूजर में. अब हम क्या करेंगे, विल क्रिएट वन शेप फाइल, क्रिएट शेप फाइल, देन फाइल नेम दे देंगे BECS. okay, then it will ask you whether you want to create point file, multi point file, line file और polygon file. अगर हमें कुछ पॉलीगॉन बिल्डिंग्स वगैरह मैप करने हैं तो हम पॉलीगॉन लेंगे. अगर हमें सिर्फ पॉइंट ही दिखाना है
यानी सिटी दिखानी है, कुछ वाटर बॉडीज दिखाने हैं, कुछ प्लांट्स दिखाने हैं, दैट्स वाई हम यूज़ करेंगे पॉइंट का। मल्टी पॉइंट का भी हम क्या करेंगे, मल्टीपल पॉइंट्स दिखाने हैं, कंटिन्यूसली चेन दिखानी है उस पॉइंट की, तो हम मल्टी पॉइंट यूज़ करेंगे। नो ज्योमेट्री मीन्स, ज्योमेट्री मीन्स ये कौन से भी ज्योमेट्री का हमें नहीं चाहिए तो नो ज्योमेट्री करेंगे, सिर्फ एक लेयर क्रिएट हो जाएगा, एक फाइल क्रिएट होनी चाहिए। फर्स्ट वी विल टेक पॉइंट, ओके, देन दिस इज ऑटोमेटिक, ये हमारा लोकेशन आ जाएगा इंडिया का। इंडिया में हमारे लेट लॉन्ग, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या होती है। आफ्टर दैट यू विल क्लियर दैट, कोऑर्डिनेशन सिस्टम में ये सब आ जाएगा आपको। अभी सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रहना है कि ये पॉइंट आपका आना चाहिए यहाँ पे। देन हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे, हमारी ये एक शेप फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो इस शेप फाइल में डेटाबेस ऑटोमेटिकली आ जाता है, जैसे कि अगर हम राइट करके क्लिक करके ओपन एट्रीब्यूट करेंगे तो ये इसका डेटाबेस, अभी कुछ नहीं है तो नहीं आया। अभी हम दिखाती हूँ तुमको। तो मुझे अभी पॉइंट क्रिएट करने हैं, पॉइंट क्या क्रिएट करना है, कुछ सिटीज है उसको मुझे पॉइंट करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाके एडिटिंग करूँगी, फिर उसके बाद पॉइंट सेलेक्ट करूँगी। ओके, सपोज एक कोटा ले लिया मैंने, नाम क्या है, नाम आया यहाँ पे, इसको डाल लूँगी कोटा। ठीक है, हम उसको एक आईडी डाल देंगे उसका, फिर भोपाल, इसका आईडी डाल देंगे, पटना 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस में कलेक्ट हो जाएगा, हम उसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आ गए, ये मैप आ गए। वैसे ही हम अगर हमने लाइन ले लिया है, कंटिन्यूस पॉइंट ले लेते थे तो ये लाइन आ जाती थी, और इसे हम हमारा इंडिया का मैप भी हम डिजिटाइज कर सकते थे। तो अभी मैं स्टॉप करती हूँ इसका एडिटिंग। ओके, तो सेव, ये कंपलसरी, यू शुड डू दैट, सेव। अभी देखिए इसका आ गया ये पॉइंट। अगर इसके नाम भी आपको देने हैं तो यहाँ पे आप एडिट जाके उसके नाम भी दे सकते हो। तो डेटाबेस आपका ऑटोमेटिकली, आप जो भी कुछ कर रहे हो उसका डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ये देखो, अगर आपको इसके लेवल शेयर दिखाने हैं तो शो लेवल, ये पॉइंट आ जाएगी। अगर आपने नाम दिया होता तो नाम आ जाता था। 1 बाय 1 नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम ये सब क्लियर कर लेंगे। अभी हमने क्या किया है, हाउ टू इंस्टॉल QGIS, इंस्टॉलिंग QGIS, इंस्टॉलिंग प्लगइन्स इन QGIS, क्रिएटिंग शेप फाइल, देन GUI के ग्राफिकल यूजर, रास्टर एंड वेक्टर डेटा में कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल क्लियर रास्टर एंड वेक्टर डेटा। थैंक यू।